Assalamu alaikum and hi. In today's video, we are going to discuss about necrotizing cyalometaplasia, a very important and common complication of salivary gland. This is the clinical picture of necrotizing cyalometaplasia. ये जो क्लिनिकल पिक्चर है ये मेलिग्नेंट और कॉम्प्लिकेशन के साथ फिर आप डिफरेंशियल में रख सकते हैं, बट दिस इज़ द क्लिनिकल पिक्चर ऑफ necrotizing cyalometaplasia. The most common site involved is palate. You can see upper palate is roll margins, invasion, some concavity, nodules. Here you can see swelling, flat surface. Here pus discharge. So different clinical variations exist. अच्छा, अगर आप क्लिनिकल प्रैक्टिस कर रहे हो या एग्ज़ाम दे रहे हो तो आपसे इस तरह की सिनारियोज पूछी जा सकती है या आपके साथ प्रेजेंट हो सकती है. देखो स्टेटमेंट को पढ़ लो क्या है. 55-year-old male present to the dental clinic with a rapidly developing painful ulcer on the hard palate. He reports that the ulcer appeared suddenly a week ago and there was no preceding trauma. The ulcer is deep, crater-like and has a necrotic base. He is a long-term smoker and underwent a dental extraction in the same region 2 weeks ago. Very important to consider. Physical examination reveals a well-defined ulcer on the hard palate with surrounding inflammation. Given the patient's history and clinical presentation, what is the most likely diagnosis? यहाँ पर एग्जैक्ट डायग्नोसिस डिफिनेटिव डायग्नोसिस के बारे में नहीं पूछा गया. डिफिनेटिव डायग्नोसिस पर इन्वेस्टिगेशन की बात होगी. लाइकली डायग्नोसिस और डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या हो सकती है. अगर आपको अभी आंसर नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, वीडियो के एंड पर आप इस तरह के कम्प्लेक्स सिनारियोज और एमसीक्यूज़ ईजिली सॉल्व कर पाओगे. इस तरह के एमसीक्यूज़ और सिनारियो वीडियो के एंड में मैं डिटेल से डिस्कस करने वाला हूँ. अच्छा, आज की जो ओवरव्यू है हम क्या करने वाले हैं इस वीडियो में. इंट्रोडक्शन टू necrotizing cyalometaplasia, etiology and pathogenesis of necrotizing cyalometaplasia, clinical features of cyalometaplasia, diagnosis of cyalometaplasia, management of cyalometaplasia and assessment questions in cyalometaplasia. This is the clinical picture of necrotizing cyalometaplasia. Introduction. Necrotizing cyalometaplasia is a rare, benign, self-limiting inflammatory condition of salivary gland characterized by necrosis of the salivary gland tissue and squamous metaplasia of the ductal system. It often mimics malignant condition both clinically and histologically, making accurate diagnosis crucial to avoid unnecessary aggressive treatment. Necrotizing cyalometaplasia. Cyalo means related to salivary gland. यहाँ पर necrotizing necrosis भी हो रहा है, metaplasia भी हो रहा है. metaplasia, dysplasia, hypertrophy, hyperplasia ये एक separate टॉपिक है, लेकिन यहाँ पर metaplasia भी हो रहा है, necrotizing necrosis भी हो रहा है, जो कि benign और self limiting inflammatory condition है salivary gland की. So what is necrotizing cyalometaplasia? A benign self-limiting inflammatory condition of salivary gland characterized by necrotizing necrosis and metaplasia, squamous metaplasia of salivary gland. ये हमारे पास मैंने बताया था कि इसकी जो एक्यूरेट डायग्नोसिस है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसकी जो ट्रीटमेंट मॉडलिटी है एक इन्फ्लेमेटरी कंडीशन को डील करने और एक मैलिग्नेंट कंडीशन को डील करने में बहुत बड़ा डिफरेंस है. तो आपने इसकी डायग्नोसिस में बहुत ही केयरफुल रहना है. देखो, अगर एक cyalometaplasia को आपने मैलिग्नेंट कंसिडर किया या मैलिग्नेंट को आपने cyalometaplasia कंसिडर किया जो कि इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है, तो इट इज़ अ बिग ब्लंडर एंड मिस्टेक. तो आपने याद रखना है कि इट इज़ इन्फ्लेमेटरी कंडीशन एंड इट शुड बी डिफरेंशियल फॉर मैलिग्नेंट conditions of oral cavity or palate. Epidemiology. Age. Most commonly affect adults between the age of 40 to 60. 40 and 60. तो इसकी जो रेंज है वो एडल्ट्स है. तो आपने पहले देखना है कि हु इज़
सिटिंग और हु इज़ प्रेजेंटिंग इन फ्रंट ऑफ यू। तो एज एक बहुत इंपॉर्टेंट है। जेंडर स्लाइड मेल प्रीडोमिनेंस। Gland affected. Predominantly affect the minor salivary gland of the heart and soft palate. Rarely it can involve major salivary gland. देखो इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, एक बात रखो, याद रखो, सयालोलिथियसिस जो था वो सबसे ज़्यादा कॉमन था सब मैंडिबुलर ग्लैंड में। रीजंस वीडियो में मौजूद है, सयालोलिथियसिस पर सेपरेट वीडियो मौजूद है। सैरेडिनेटस जो था वो सबसे ज़्यादा कॉमन था हमारे पास पेरोटिड ग्लैंड में। क्यों? रीज़न मौजूद है वीडियो प्लेलिस्ट में। मैं जिस वीडियो की बात कर रहा हूँ वो सारे वीडियो इस चैनल में मौजूद है। ओरल मेडिसिन प्लेलिस्ट में जाकर आपको वीडियो मिल जाएगी। वीडियो के एंड में भी लिंक दे दूँगा, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक होगा। अच्छा, अब ये जो निक्रोटाइजिंग सैलोमेटाप्लीजिया है वो कॉमन है किस चीज़ में? माइनर सिलाइवरी ग्लैंड में। तो आपने ये बातें याद रखनी है। Etiology and pathogenesis. The exact cause of necrotizing cell metabolism is not entirely understood, but several factors are believed to to contribute to its development. जो most important है वो है ischemia. The most accepted theory is that necrotizing cell metabolism result from ischemic injury to the salivary gland. Factor that may lead to ischemia include trauma, vascular compromise, radiation therapy, and smoking. So ischemia and local anesthesia are the most common factor of causing necrotizing cyanometaplasia. लेकिन ischemia किन वजह से काज होगी? वो ट्रामा से होगी, वास्कुलर कंप्रोमाइज से होगा, रेडिएशन थेरेपी से होगी और स्मोकिंग से होगी। सो डेंटल प्रोसीजर्स, इंट्यूबेशन और लोकल सर्जरी, इन्फेक्शन, बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन। तो देखो, जब हमारे पास एक प्रोसीजर हो जाए, डेंटल प्रोसीजर हो जाए, तो उसके बाद इसके इनस के चांसेस, मीन नेक्रोटाइजिंग सैलोमेटाप्लीजिया के चांसेस ज़्यादा होंगे। वास्कुलर कंप्रोमाइज, वास्कुलाइटिस, जैसे इन द केस ऑफ शोगरन सिंड्रोम एंड बेशेट सिंड्रोम, एम्बोलिज्म और वास्कुलर अक्लूजन। रेडिएशन थेरेपी फॉर हेड एंड नेक कैंसर। अक्सर सिनेरियो बनाई जाती है कि जब हम एक पेशेंट को क्लिनिक्स में रेडिएशन करते हैं तो हम कौन से इंस्ट्रक्शन या कौन से अवेयरनेस देते हैं। तो उसमें शोगरन सिंड्रोम्स के काज होने के चांसेस होते हैं, जीरोस्टोमिया के चांसेस होते हैं, और एक आपने ये भी पेशेंट को बताना है कि एक्यूट निक्रोटाइजिंग सैलोमेटाप्लीजिया भी हो सकता है रेडिएशन एक्सपोजर की वजह से। स्मोकिंग एसोसिएटेड विद वेजो कंस्ट्रक्शन एंड रिड्यूस ब्लड फ्लो। देखो स्मोकिंग क्या कर रहा है? स्मोकिंग हमारे पास ब्लड सप्लाई को कम करता है। हमने पीरियोडोंटोलॉजी की प्लेलिस्ट पर सेपरेट वीडियो मौजूद है, पीरियो में हमने बताया था जब स्मोकिंग करेगा तो जो वासो का ब्लीडिंग एंड प्रोबिंग था वो कम हो रहा था। तो प्लेलिस्ट पीरियोडोंटोलॉजी का भी मौजूद है। लोकल एनेस्थीसिया, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लोकल एनेस्थेटिक विद एफिनेफ्रीन कैन काज वासो कंस्ट्रक्शन एंड सब्सिक्वेंट इस्कीमिया। तो देखो, लोकल एनेस्थीसिया को याद रखो, ट्रामा को याद रखो कि ये जो है इस्कीमिया काज करेगी जो ट्रामा है, और लोकल एनेस्थीसिया भी हमारे पास वाजो कंस्ट्रक्शन काज करेगी, तो वो भी एक इनडायरेक्टली इस्कीमिया ही है। तो आपने ये सारे फैक्टर्स याद रखने हैं क्योंकि ये फिर सिनेरियो में आपके साथ प्रेजेंट हो सकते हैं। तो आपने ये बात याद रखनी है कि इस्कीमिया इज़ द मोस्ट कॉमन फैक्टर। अब इस्कीमिया को कौन से फैक्टर याद करते हैं तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। दिस इज द क्लिनिकल पिक्चर ऑफ एक्यूट नेक्रोटाइजिंग सैलोमेटाप्लेजिया। Swelling on the palate, central portion is ruptured, and you can see minor salivary gland is involved. अगर अब ये हमारे पास सायरोडेनेटस होता तो जो सिलाइवरी स्टिल्सन डक्ट की आउटलेट है वहाँ पर कुछ कॉम्प्लिकेशन होता। अगर ये सैलोलिथियसिस होता तो जो वाटन्स डक्ट है उसकी आउटलेट पर कुछ अपेरेंस होती। लेकिन यहाँ पर पैलेट है तो आपने अब ये हमारे पास बेसल सेल कार्सिनोमा के साथ भी और बहुत से मिलेग्नेंट कंडीशन है उसके साथ कंफ्यूज हो सकता है। लेकिन डिफरेंशियल में मैं क्लियर करने वाला हूँ कि आपने फिर किस तरह डेफिनेटिव डायग्नोसिस तक पहुँचना है। सिम्टम्स, एक्यूट ऑनसेट, सडन अपेयरेंस ऑफ पेनफुल और पेनलेस स्वेलिंग इन द पैलेट। देखो जो मेलिग्नेंट होते हैं वो क्रॉनिक होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, ये एक एक्यूट कंडीशन है। तो मेलिग्नेंट से आप इस तरह भी डिफरेंशिएट कर सकते हो। अल्सरेशन, रैपिडली प्रोग्रेसिव टू डीप क्रेटर लाइक अल्सर ऑफन विद नेक्रोटिक बेस। तो देखो इसमें जो है इवोल्यूशन होता रहता है। जब पहले ये फ्लैट होता है, फिर स्वेलिंग अडॉप्ट कर लेता है, फिर उसके बाद उसमें हमारे पास क्या होता है, अल्सर होता है, फिर नेक्रोसिस भी हो जाता है। लेकिन ये बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन में होता है। जो क्रॉनिक होता है वो फिर मेलिग्नेंट की तरफ इंडिकेशन है। नमनेस और पेरेस्थीसिया मे अकर ड्यू टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ नर्व फाइबर। तो मेलिग्नेंट में भी ये कंडीशन मेलिग्नेंट और इनस में कॉमन है।
N stand for necrotizing cellometaplasia. Science: well-defined ulcers typically located in the hard and soft palate, surrounding inflammation, redness and swelling around the ulcers. Self-limiting. Remember, malignant conditions are not self-limiting. So, NS is acute and self-limiting, while malignants are chronic and not self-limiting. Lesions usually heal spontaneously within 6 to 12 weeks without treatment. This is the clinical picture of acute necrotizing cellometaplasia or simple necrotizing cellometaplasia. हमारे पास रेड बेस जो सराउंडिंग है वो क्या है, इरिथमेटस है और रेड है. सेंटर जो है उसमें हमारे पास फिब्रोसिस हुई है, नेक्रोसिस हुई है. तो ये नेक्रोसिस है, ये सेलोमेटाप्लेजिया है, ये नेक्रोसिस है. वीडियो से कुछ भी सीख रहे हो, एफर्ट्स को अप्रिशिएट करना चाहते हो तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें. मैं हर एक ओरल मेडिसिन हो, ओरल पैथोलॉजी हो, पेरियोडोंटोलॉजी हो, फार्माकोलॉजी हो, हर एक सब्जेक्ट पर मैं कंप्लीट कवरेज करने वाला हूँ. अगर आप मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब करें. एंड लेट्स कंटिन्यू आवर वीडियो. डायग्नोसिस. Clinical examination. Initial suspicion based on clinical presentations. Initial suspicion based on, सॉरी फॉर कुछ मिस्टेक हुआ है, लेकिन हमारे पास जो इनिशियल सस्पेंशन है वो है क्लिनिकल प्रेजेंटेशन पर. जब देखो ये क्लिनिकल प्रेजेंटेशन हो जाए तो उस पर हम बहुत कंफ्यूज हो सकते हैं. अगेन मैं बताने वाला हूँ, ये जो प्रेजेंटेशन है ये बहुत ही कंफ्यूजिंग होती है when with the malignant conditions. Histopathological examinations. Definitive diagnosis require biopsy and histological analysis to differentiate necrotizing cellometaplasia from malignant condition. Key histological features include coagulative necrosis of salivary gland acini, squamous metaplasia of ductal epithelium resembling squamous cell carcinoma, preservation of lobular architecture. Despite necrosis and metaplasia, the oral glandal architecture remain intact. Very important. Inflammatory infiltrates, lymphocyte, plasma cell, and histiocytes around necrotic areas. So these are the biopsy finding of necrotizing cellometaplasia: coagulative necrosis, squamous metaplasia, preservation of lobular architecture, and inflammatory infiltrates. Differential diagnosis, very important. Malignant tumors: mucoepidermide carcinoma, salivary gland malignancy with similar histological features, squamous cell carcinoma, especially because NS exhibits squamous metaplasia, adenoid cystic carcinoma, another salivary gland malignancy which is malignant in nature. Benign condition: traumatic ulcer from mechanical injury, infectious ulceration secondary to bacterial or viral infection, Wegener's granulomatosis or Wegener's granulomatosis can present with palatal ulceration and necrosis. तो देखो आपने ये सारे याद रखने हैं. म्यूकोएपिडर्माइड कार्सिनोमा, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, एडेनोइड सिस्टिक कार्सिनोमा. क्यों? अगर आपने एपिडर्माइड कार्सिनोमा को फॉर एग्जांपल एक ट्रॉमेटिक अल्सर कंसिडर किया, सो इट इज़ अ ह्यूज ब्लंडर. तो आपने ये याद रखना है, ट्रॉमेटिक अल्सर भी ये प्रेजेंटेशन दे सकता है, इन्फेक्शियस अल्सरेशन भी दे सकता है, और जो वेगनर्स ग्रेनुलोमेटोसिस है वो भी एक्यूट नेक्रोटाइजिंग सेलोमेटाप्लेजिया के प्रेजेंटेशंस के साथ मैच करता है. सो दिस इज़ द क्लिनिकल पिक्चर ऑफ दिस कॉम्प्लिकेशन नेक्रोटाइजिंग सेलोमेटाप्लेजिया. लेकिन इस क्लिनिकल पिक्चर से आप एग्जैक्ट डायग्नोसिस नहीं कर सकते, आप एक डिफिनेटिव डायग्नोसिस बायोप्सी के थ्रू करेंगे. लेकिन अगर इस तरह प्रेजेंटेशन हो तो आपने डिफरेंशियल सारे याद रखने हैं जो मैंने डिटेल से एक्सप्लेन किए. मैनेजमेंट. ऑब्जर्वेशन वे जो है वेट एंड वॉच पॉलिसी यहाँ पर भी अप्लाई होती है, जिस तरह ल्यूकोप्लेकिया पर अप्लाई होती है. ल्यूकोप्लेकिया क्या है? ल्यूकोप्लेकिया में पर भी एक सेपरेट वीडियो मौजूद है. नेक्रोटाइजिंग सेलोमेटाप्लेजिया इज सेल्फ लिमिटिंग एंड टिपिकली रिजॉल्व्स विदाउट स्पेसिफिक ट्रीटमेंट विद इन अ फ्यू वीक्स. सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट: pain management, analgesic for pain relief, topical antiseptic to prevent secondary infection, warm saline rinse to promote healing, follow-up, regular follow-up to monitor healing and ensure resolutions. So these are the management of acute necrotizing cellometaplasia. सेल्फ लिमिटिंग है, आपने जस्ट सिम्टम्स को ट्रीट करना है और देखना है, वेट एंड वॉच पॉलिसी अप्लाई करनी है. अच्छा, इंटरवेंशनल ट्रीटमेंट फिर देंगे जब हमारे वेट
एंड वॉच पॉलिसी हमारे एक्सपेक्टेशन के मुताबिक नहीं जा रही, तो फिर सयालिड इंडोस्कोपी करेंगे, मिनिमल इन्वेसिव इंडोस्कोपिक रिमूवल ऑफ स्टूज एंड डक्टल डायलेशन। अगर वो कोई इस्कीमिया काज कर रहा है या ब्लड सप्लाई काज कर रहा है तो फिर हम उसको रिजॉल्व करेंगे। तो देखो इंटरवेंशनल ट्रीटमेंट क्या है, हम किस चीज़ को इंटरवेंट करेंगे, किस चीज़ को स्टॉप करेंगे। हम इटियोलॉजिकल फैक्टर्स को इंटरवेन करेंगे। इटियोलॉजिकल फैक्टर अगर आपको आ रहे हैं तो आपको ये ट्रीटमेंट भी समझ आएगा। एक्स्ट्रा कॉर्प्यूलर शॉक लिथोट्रिप्सी, देखो हम स्टोन को डिस्ट्रॉय करेंगे ताकि हमारे पास ऑब्स्ट्रक्शन कम हो जाए, ब्लीडिंग जो ब्लड सप्लाई है इस्कीमिया मिनिमाइज हो जाए। इंट्रा ऑर्डर अप्रोच, अब ये हम दोनों में कर सकते हैं। ये जो सर्जिकल रिमूवल है वहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन के करेंगे कि जो हमारे पास जो मेन काज है वो इस्कीमिया है, तो हम ऑब्स्ट्रक्शन को रिमूव करेंगे, और जो हमारे पास जो डक्ट्स है उसको भी हम रिमूव करेंगे। जो फॉर एग्जाम्पल जो हमारे पास डक्ट्स है, जो ब्लड है, ब्लड वेसल्स है, उसमें जो हमारे पास रेजिस्टेंस है, ऑब्स्ट्रक्शन है, उसको हम रिमूव कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं। प्रोग्नोसिस एंड कॉम्प्लिकेशन, necrotizing cellulometaplasm is benign condition with good prognosis. Complete healing usually occur within 6 to 12 weeks. Recurrence, rarely recurrence can occur, especially if the underlying ischemic condition present. अगर constantly obstruction है वेसल्स की तो फिर हमारे पास क्या होगा, ये complications काज होंगे। The most important part of this video and the most exciting part is quiz time. So let's put your knowledge to the test and start now. But before starting, if you want to appreciate these efforts, please subscribe this channel and let's start the quiz. देखो वही सिनेरियो है, अब आप पढ़ ले। A 55-year-old male, एज आ गया, एडल्ट एज है, प्रेजेंट टू द डेंटल क्लिनिक विद रेपिडली डिवेलपिंग पेनफुल अल्सर ऑन द हार्ड पैलेट। एक एक्यूट कंडीशन डेवलप हो रहा है हार्ड पैलेट पर, तो ऑलमोस्ट हाफ एस्टिमेट जो है हम डायग्नोसिस की वो हुई है। ही रिपोर्ट्स दैट द अल्सर अपीयर सडनली अ वीक अगो एंड देयर वाज नो प्रीसीडिंग ट्रामा, तो अंडरलाइनिंग ट्रामा नहीं है, तो ये फिर कन्फ्यूज़ हो गया किस चीज़ के साथ, मिलिग्नेंट कंडीशन के साथ। द अल्सर इज डीप क्रेटर लाइक एंड हैज़ नेक्रोटिक बेस। अगर नेक्रोटिक बेस है तो हमारा जहन कहाँ पर जाना चाहिए, नेक्रोसिस हो रही है, तो इट माइट बी नेक्रोटाइजिंग सेलोमेटाप्लेजिया, लेकिन स्टेटमेंट को पूरा पढ़ ले। ही इज़ लॉन्ग टर्म स्मोकर एंड अंडरवेंट अ डेंटल एक्सट्रैक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट, इन द सेम रीजन। डेंटल एक्सट्रैक्शन से के साथ एनेस्थीसिया दिया होगा तो एनेस्थीसिया भी एक फैक्टर था। फिजिकल एग्जामिनेशन रिवील्स वेल डिफाइंड अल्सर ऑन द हार्ड पैलेट विद सराउंडिंग इन्फ्लेमेशन। अगर ये स्टेटमेंट ना होती तो फिर भी हम बता सकते थे कि क्या होता, नेक्रोटाइजिंग सेलोमेटाप्लेजिया। अच्छा, अब ये स्टेटमेंट आप पढ़ ले, आंसर आपने बताना है, वीडियो को पॉज कर ले और आंसर बताए। कोई भी कन्फ्यूजन हो तो मैं फिर कमेंट में आंसर पिन कर दूंगा विद डिटेल एक्सप्लेनेशन। Thank you so much for watching, and that's all. If you want to appreciate these efforts, please subscribe this channel, and you don't want to miss any upcoming video, hit the bell icon. Thank you so much for watching.